Hello students, welcome to all of you, and today we are going to complete our very beautiful poem, the Geography lesson. The poem name is Geography lesson from your book Honeydew. And students, this poem is about a very beautiful experience of our poet. Who is the poet of this poem? The name of poet is Zulfikar Ghosh. And this is the poem number 2 in your book, page number 34. Okay, the name of the poet is Zulfikar Ghosh, and this poem is about the journey of poet, his experience. He talk about an aeroplane journey. Okay, an aeroplane journey, or we can say an jet journey. Jet is another name and another kind of aeroplane. Okay, and in this poem we will talk about an aeroplane journey. This poem is all about poet's feeling when he sat in an aeroplane. Okay students, this poem is fully about poet's feeling when he sat in aeroplane and seeing outside from the window and seeing the scenery, seeing the images, what he is seeing on earth, he is described here. When he sat in an aeroplane, he looked down on earth. Okay, our poet. He realized how the earth had changed. Poet is realizing how had earth changed its form as he was going high and high. As he was going high and high from the earth to up to sky, he is seeing that how the earth look like. Okay, how the everything looks from the sky, how our civilization was established, how the cities looked like. Okay students, how the earth looked like. All these things he saw from aeroplane, from the aeroplane. And he also at last from the in the poem he just asked one question to himself, and which question he asked we will discuss in this poem, we will see in this poem. Okay, so let's start our poem explanation students. Geography lesson. The name of the poem is Geography lesson. Here he is describing the poet is describing geography of our earth from the view of aeroplane. When he sat in an aeroplane, he sat in jet. What is the geography of our earth? The poet is describing here very beautifully. Can you imagine what your city would look like? Students, I'm reading from here. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Okay, if you saw it from the 10,000 feet above, okay, from on the ground, neatly planned. Your cities look like neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would so it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Think of it. Okay, तो किस तरह से डिफरेंट आपको दिखती है आपकी सिटी? हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखी है 10,000 की ऊंचाई से, 10,000 फीट की ऊंचाई से अपने सिटी को, ग्राउंड को देखा है, अर्थ को देखा है, कितना नीटली, कितना परफेक्ट मैनर में बनाया हुआ लगता है. Here is a poet's descriptions of just such a view of the city and some questions that come to his mind. In his poem, poet just describing some view of the such a view of the city from sky, from flying aeroplane, and some question had come to his mind. Which question we will see in last stanza? Okay, I'm start to read from very first stanza. Students, there are 3 stanza in this poem and each stanza has 8 lines. Okay, now start. When the jet sprang into the sky. Jet is a jet aeroplane. Okay, and you can see here, this is aeroplane students and this one is jet, and slight difference is jet
jet flying faster and higher than aeroplane. This is the main difference. Okay, so when the jet sprang into the sky, sprang means to go up, to go high and high into the sky. When the jet, it was clear why the city had developed the way it had. When poet is sitting in jet, okay, and he's saying here, when the jet sprang into the sky, rise up to the sky too much, it was clear, it is very clear, the city view had developed it way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. Here पोइट इज सेइंग, जब वह जेट यान में बैठा है, जेट में बैठा है, जेट एरोप्लेन में बैठा है, और वो जेट जैसे ही बिल्कुल आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाने को होता है, इट वाज क्लियर, बिल्कुल ये बात साफ हो जाती है, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि जो सिटीज़ हैं ऐसी क्यों बनी है, सिटीज़ जो उसको दिखती हैं ऊंचाई से, बिल्कुल हैड सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, किस तरह से बनी है, किस तरह से डेवलप्ड सिटीज़ की गए हैं, किस तरह से रोड दिख रहे हैं ऊंचाई से, शहर और जो हाउसेस किस तरह से बने हैं, वो सब उसको व्यू दिख रहा है. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और जो एक माइल की जो दूरी होती है हमारे अर्थ पे, वो उसको कैसे दिख रहा है, 6 इंचेस के स्केल में दिख रहा है ऊंचाई से. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी. इनएविटेबिलिटी मीन्स समथिंग अनअवॉइडेबल, समथिंग यू कांट अवॉइड. ये ऐसी चीज़ है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते. देयर सीम्ड, क्या जो आप व्यू देख रहे हो, सिटी का व्यू देख रहे हैं, वो जेट में बैठ के ऊपर से विंडो से उस व्यू को, उस थिंकिंग को, सिटी के लुक को वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं. अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफिजर्ड. हैफिजर्ड मीन्स विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. यही चीज़ तो वो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से सिटी बना दी गई है बिना किसी प्लानिंग के, कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसा मैस दिख रहा है ऊंचाई से, ये सब ना रोड समझ में आ रहे, ना हाउसेस समझ में आ रहे कैसे बने. अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफिजर्ड्स, कि किस तरह से जो ग्राउंड दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है. हैफिजर्ड्स मीन्स विदाउट एनी प्लानिंग, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिल्कुल अनप्लान्ड है, विदाउट स्टाइल, नो स्टाइल इज फॉलोड देयर. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट हमारा स्प्रैंग करता है, ऊंचाई पे जाता है, मूव्ड वेंट अप टू द स्काई, जब ऊंचाई पे जाता है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस फर्स्ट स्टैंजा, पोइट इज जस्ट सेइंग ही इज सिटिंग इन jet aeroplane, he is watching the city view from the height, and he's saying the city is not developed properly, without any plants, nothing is planned, okay, without a style, he is saying here. And in this stanza the scene of a city has been described. city का scene जो है describe किया गया है. okay, now come to the next stanza, because अभी तो उसको सिटी का व्यू क्लियर नहीं है, बट इन नेक्स्ट स्टैंजा समथिंग विल क्लियर. इस टाइप का उसको व्यू दिख रहा है. ओके, अभी उसको समझ में इजीली नहीं आता है कि सिटी का डेवलप कैसे हुआ है, नॉट प्लान्ड. ओके, नाउ सेकेंड स्टैंजा, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट. ओके, जब वो जेट 10,000 फीट की इस हाइट पे पहुंच जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन. अब उसको क्लियर हो रहा है, ठीक है, पहले इतनी ऊंचाई पे नहीं था जब उसे सिटीज़ का व्यू समझ में नहीं आ रहा था. और पोइट हमारे क्या कह रहे थे कि जो सिटीज़ बना दी गई हैं बिल्कुल अनप्लान्ड है, प्लानिंग करके नहीं बनाए हैं. बट व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, अब जो जेट है वो 10,000 फीट की हाइट पर पहुंच गया है. इट वाज क्लियर, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है उनको, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि सिटीज़ क्यों है, कंट्रीज़ में सिटीज़ हैं. वेयर द रिवर्स रन, और कहाँ नदियाँ बह रही हैं. वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और वैलीज जो जगह होती हैं वहीं पर ही पॉपुलेशन क्यों जो है रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, नदियों के किनारे. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये सब क्या है, ये सब ज्योग्राफी के लॉजिक हैं.
दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। ज्योग्राफी का ही तो ये लॉजिक है कि जहाँ पर वाटर और लैंड होता है वहीं तो अट्रैक्ट, वो मैन को अट्रैक्ट करते हैं, वहीं पे इंसान बस जाते हैं। ओके, वहीं पर उन्हें अपना निवास बना लेते हैं, जो कि प्राचीन समय से आपने जो भी सिविलाइजेशन पढ़ा है वो उसमें यही तो है ना, कि यही तो लॉजिक है ज्योग्राफी का। जहाँ रिवर्स है, जहाँ प्रॉपर लैंड है, वहीं वही जगह अट्रैक्ट करते हैं मैन को टू बी रेसिडेंट। was clearly delineated। और ये बात, ये लॉजिक पूरी तरह से delineated है, दिखाया गया है। ये लॉजिक पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। डेलिनेटेड मीन्स टू शो, ये शो हो रही है बात। क्यों? जब उन्होंने ऊपर से इतनी ऊंचाई से देखा, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तब उन्होंने देखा ओके प्रॉपर रिवर्स उनको बहती हुई दिख रही है, प्रॉपर सिटीज़ बसी हुई दिख रही हैं, सिटीज़ उनको दिख रहे हैं, रिवर्स के किनारे ही जो है लोग बस गए हैं, रह रहे हैं। ये सारे लॉजिक उनके अब क्लियर हो गए। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, ये सारे लॉजिक उनके कब क्लियर हुए? जब जेट कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया था? 10,000 फीट की हाइट पर जेट उनका पहुंच गया था। ओके, सो वन मोर थिंग इज हियर डिस्क्राइबिंग दैट valley on the earth have most population. Okay, human settlement mostly need water, that is why valleys and land and water attract man. Human settlements mostly need water, and we know that the basic need of life are water and land. Okay, that is which attract man a lot. Now come to the last stanza of this poem. This is the proper view that river, cities. Okay, last stanza. When the jet rose 6 miles high. In first stanza, normal height. Second stanza, 10,000 feet. And third stanza, 6 miles high. Just keep this fact in your mind. Okay, students? So, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. Now, what he is seeing? When the jet rose means to go up and up, higher height. 6 miles high जब हमारा jet उनका पहुंच जाता है, jet aeroplane, it was clear the earth was round. Now one more thing is clearing with to above point, that earth is round and that is had more sea than land, and he is seeing that there is more sea, more water than land on our earth. But it was difficult to understand. Now this is the question which I was talking in the starting of the poem, that one question he is asked to himself. This is the question. Okay, but it was difficult to understand. The poet is saying it is very difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, to kill from that heights. It was not clear why. ही सेइंग दैट, ये बात उसको क्लियर नहीं होती है, समझ में नहीं आती है। वाई द मैन कॉजेज फाइंड द कॉजेज टू हेट ईच अदर, किस तरह से वो हेट करने के रीज़न ढूंढ ही लेते हैं एक दूसरे से। कौन? मैन, पीपल। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, और क्यों जो है बंटवारा हो गया है सरहदों का, सिटीज़ के बीच में क्यों वॉल्स उन्होंने बिल्ड कर दिए हैं। ये सब उसे हायर जो हाइट पे पहुंच गया था 6 माइल पे, दैट वो ये सब सोचने लग गया। एंड टू किल, मारते हैं एक दूसरे को। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, जितनी ऊंचाई पर बैठ के वो सोच रहा था कि ये उसको क्लियर नहीं है, ऐसा क्यों है। दिस इज द क्वेश्चन विच पोइट आस्क्ड टू हिमसेल्फ। ओके, पोइट जुल्फिकार घोष। Students, when the jet plane is at the highest of 6 miles, okay, 6 miles above the ground, the earth looks round. Here earth looks round, the earth looks round, had more water than land. The poet understand the reason for it being so. तो उसको रीज़न भी इसका समझ में आ रहा है कि हाँ भाई अर्थ राउंड है, सीज और समुद्र ज़्यादा है देन लैंड, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल बिल्ड वॉल्स ऑफ ब्रिक्स। लोगों ने वॉल्स क्यों बना लिए हैं ब्रिक्स के, ठीक है। एंड हेट क्यों करते हैं एक दूसरे से। एंड डिवाइड द लैंड्स का बंटवारा क्यों कर लिया है, डिवाइड क्यों कर लिया। एंड वाई पीपल रश एट ईच अदर्स थ्रॉट, क्यों एक दूसरे को
करते हैं थ्रॉट पर, उसके एक दूसरे के लपकने को रहते हैं, क्यों परेशान करने को रहते हैं एक दूसरे के लिए, उतावले रहते हैं. So students, I hope you get the meaning of this poem. Okay, this poem is about geography lesson. Why the lesson name is geography? Because poet is in full poem. Poet is describing the geography of our earth. Okay, from the view of aeroplane. है ना? Okay students, so here are some glossary point. Inevitable means that cannot be avoided. Have results without planner and order. Delineated means to shown. Now come to the exercise. Only 4 exercise and very easy. Number 1, find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. हमारी पोएम में ऐसे लाइन्स आए हैं, फ्रेजेस आए हैं जो कि आपको आपकी ज्योग्राफी की बुक में भी मिलेंगे ऐसी बातें. ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी लेसन है, एसएसटी का जो आपके बुक्स होते हैं उसमें भी ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इस पोएम में आपको मिलने हैं. तो वही पूछ रहे हैं, वो ऐसे फाइंड कीजिए, वो फ्रेजेस पता कीजिए, वो ऐसे सेंटेंसेस बताइए फ्रॉम द poem. So I'm reading this, listen very carefully. The first one is scaled 6 inches to the mile. Okay, in first stanza, please see in your book students, scaled 6 stanza is scaled 6 inches to the mile. Please underline this line. Okay, first. And the second one is from your second stanza. Okay, the line is valleys were populated. This line also occurred in your geography lesson. And the third line is land and water attracted man. This line is also in your second stanza. Okay, second stanza, line number 6, land and water attracted man. These are the 3 important phrases which comes in your poem related to geography lesson. Now come to the second scene. From the window of an aeroplane the city appears. वो ये बोल रहे हैं, पहले तो उसको वो सिटीज़ कैसे दिखते हैं कि जैसे प्लांट नहीं है, कैसे बना दिए, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रोड्स है कहाँ कुछ है. फिर लेकिन बाद में उसको कैसा दिखता है, एज डेवलप एज नेसेसरी. जब और हाइट में जाता है, सेकंड स्टेंजा की बात चल रही है, इस तरह से डेवलप की गई है सिटीज़ जिस तरह की उनको डेवलप करने की ज़रूरत थी. नदी के किनारे प्रॉपर ज़मीन है जहाँ, प्रॉपर वाटर अवेलेबल है जहाँ. ओके, सो आंसर इज एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या थे कि हाँ, इंसानों ने वहीं अपना घर बसाए जहाँ प्रॉपर वाटर अवेलेबल था, जहाँ पर उनकी बेसिक नीड पूरी हो रही थी. ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट वन, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स. जहाँ सिटीज़ वही हैं जहाँ रिवर्स हैं, जहाँ पानी है, जहाँ नदियाँ हैं, वहीं सिटीज़ बसाई गई. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो थर्ड वन, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड. और ये बात बहुत ईजी है समझना कि वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, वैलीज में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है. एंड नंबर 5 ऑप्शन, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड. और ये सारे लॉजिक उसके क्लियर हो गए थे. यही तो लॉजिक है ना पोएम के. ठीक है स्टूडेंट्स, इट है द अर्थ इज़ राउंड और इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, ये सारे लॉजिक उसके पोएम्स में क्लियर हुए थे. तो आंसर इज फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट. तो जब वो हाइट पे पहुंच गए थे, क्या उनको क्लियर हो रहा था और क्या क्लियर नहीं हो रहा था हमारे पोएट जी को. द आंसर ऑफ क्लियर फ्रॉम द हाइट इज़ द अर्थ इज़ राउंड. उनको ये क्लियर हो गया था कि अर्थ हमारी राउंड है. द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड. दिस लाइन हैज़ क्लियर टू हिम. ये जो लाइन है यहाँ मैं बता देती हूँ, ये लाइन उनको क्लियर हो गई थी. ओके, तो क्लियर में आपको ये वाला आंसर लिखना है, सेम लाइन लिख देनी है स्टूडेंट्स. एंड नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट इज़, क्या क्लियर नहीं हुआ था, हाँ, व्हाट इज़ अनक्लियर टू हिम, दैट इज़ व्हाई मैन हेट ईच अदर. लास्ट स्टेंजा में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाई मैन हेट ईच अदर, क्यों सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये उनको क्लियर नहीं हुआ था. वाई बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़, क्यों दीवारों खींच दी गई हैं कंट्रीज़ के बीच में, ये उनको क्लियर नहीं हुआ था फ्रॉम द हाइट.
So students, we also completed the exercise of this poem, working with the poem, and complete this poem. Thank you for watching this lesson, students. Good luck.